All right. So I think we'll just kick this off in the interest of saving time. People will keep pouring in. First of all, thank you and welcome everyone who have joined. Um, I'll just set the context for our 1 hour call today. So today we are going to launch the India Clean Air Connect dashboard, and we have with us the CEO of India Climate Collaborative, Shloka Nath, joining us, who I will be starting the conversation with, where we'll hear about how the dashboard was conceived and what the vision for the dashboard was, followed by my colleague Ankita. She is the senior program coordinator for the air quality work in Jharkhand. And also for the last 6 to 8 months, she's been meticulously curating all the relevant data to be uploaded on the dashboard so that it can be of a valuable resource for the ecosystem. And after she presents the dashboard, we're going to go to Ankit Bhargava, who is the co-founder of Sensing Local. And when the dashboard was conceived of, he was the one who was involved in mapping the entire air quality ecosystem and creating a report, followed by which this dashboard was created. So just for some context, actually, I think in 2014 is when India announced its air quality standards. In 2019, if I'm not wrong, the National Clean Air Program was announced, where 120 cities were identified with a target of 30% air quality reduction over the next 5 years. In the last 7 to 8 years, the air quality ecosystem, the conversation around how air quality and its health impact is perceived, the players in the ecosystem who work on the issue either directly or on the periphery across sectors has grown tremendously. And other than a couple of portals where you can go and access air quality data, one is of course the government portal, and then there are a couple there are one or two other portals as well where you can just access data. There wasn't really much for the ecosystem to find out micro action plans or air quality reports on data or on health or air quality jobs or important communications or IEC content. And this dashboard, I think, it fills that gap. So just to learn more about how it was conceived, I'm going to go straight to Shloka. Shloka, welcome. And I know you're extremely busy, so thank you so much for taking time out for this conversation. When we conceived of this online launch, we felt that a lot of discourse on air quality is still focused around the primary English media centers, so Delhi or Bombay. So since we work in a lot of states and we've seen how much hunger and appetite for air quality related information in the regional media is, so we felt that it will be best to fill the room with regional journalists and players in the ecosystem who work at a regional level so that they can learn more about this dashboard. So thanks and welcome for joining, Shloka. And the first question to you is, what was the when the Clean Air India Connect portal commissioned, what led to its conceiving? Like, what was the thought or vision behind thinking of, okay, maybe this is a gap that we need to fill, and maybe we could create a dashboard. Over to you, Shloka. Thanks, Brikesh. Thanks for introducing today's event. Thanks for the questions. I'm really excited to be here. I think it's an incredibly important topic, and the work that's being done is hugely critical. So we're really happy to support. Good evening to everyone who's joined us. Thank you for taking so much time out of your own schedules to be here with us today. So as Brikesh mentioned, I lead an organization called the India Climate Collaborative. And if you're not very familiar with us, then we're essentially a philanthropic platform that looks to drive or mobilize grant capital towards climate solutions.
And we really look to bring together very diverse voices in the climate ecosystem. We want to increase investment in climate solutions, as I mentioned. And the idea is to really sort of use our mandate as a collaborative to represent various sectors, interests, contributions, especially around areas as important as a larger clean air movement. So why is action on air pollution really needed in India? I think that question itself is very self-evident, but I think it's useful to just talk through some of the concerns, when setting the context for what we're doing here today. I think when we talk about air pollution, I think the place we usually begin is, in outlining the scale of the air pollution crisis. But I think many of you here today already know the current state of affairs. You know that we're amongst the most polluted countries in the world. Many of you, in fact, report on it very frequently. But what I want to emphasize is that the severity of the situation is really, really, something we can't sort of understate. And it's a very, very critical issue. So just to give you a few statistics, as of 2022, nearly 40 of the top 50 most polluted cities in the world are in India. That's 80% of the list. And, even pollution concentration wise, air quality in these cities actually exceeds the WHO's air quality standards by over 10 times. And if you move away, let's say, from just geography and you look at health, then I think, we don't need a reminder that air pollution is a public health crisis. It causes more than 1 million deaths annually in India, and exposure to air pollution impacts nearly every organ in the body. It exacerbates pre-existing conditions. And of course, it really affects immunity to future diseases. I think, therefore, action on air pollution is critical, it's urgent, it needs to be comprehensive. And the status quo in India is, I think, something that really needs to be sort of worked on. Because in the frantic rush to actually address air pollution, we've defaulted to very blanket solutions. And what we tend to ignore is the fact that this is not an isolated crisis. It is a systemic, multi-sectoral issue or problem. It has knock-on effects on us as well as our surrounding ecosystems. And what that means is that our response to air pollution and the crisis cannot be the way it is right now, which is we are placing more of an emphasis as a society on managing the disaster rather than averting the risks. So air pollution is continuing to grow upon us with every passing year. It's becoming increasingly clear that we need to move towards, a new paradigm, a new model. We have to better inform ourselves of the risks that await us so that, our communities, our businesses, our cities, our countries as a whole are in a better position to act rather than react. So in India, I think when we look at the face of this challenge, I think there are a few things that are very heartening. One is the dedication that is being showcased by civil society. The nonstop efforts of scientists, of lawyers, of journalists like yourselves, of campaigners, of entrepreneurs, researchers, public health experts. The fact that all of these different actors are working on different pieces of the problem and more are testament to the fact that positive change is already underway. And these very dedicated individuals and organizations have shown us that they are not content, with the status quo, that they refuse to accept polluted air as an inevitable part of life, but they've really taken it on themselves to initiate change, even if it's one step at a time. I think the other thing to point out that is reason for optimism is that the government of India's National Clean Air Program is also a very powerful step in acknowledging and resolving the problem of our deteriorating ambient air quality. The focus, of course, is on 132 non-attainment cities and their air quality management plans. Yet, and this is what I want to emphasize, as crucial as these individual efforts are, the scale of the air quality crisis really means that we have to build an even greater and definitely a united front. So it does require partnership between very diverse stakeholders that has to sort of transcend these different silos that we're working in. It has to allow for many sort of ecosystem-wide collaborations. We have to have regional interdisciplinary partnerships. There needs to be more knowledge sharing, more funding for innovative air quality solutions.
And I also want to point out that the air quality ecosystem in India is still very nascent. What this means is that there is, enough time and scope to streamline our approach towards solutions before the system is set. So we're not yet locked into certain solution pathways. So we can be flexible to what the needs are. And that, of course, means that, we have to look at knock-on effects on health, on climate, on other sectors as well, in terms of how we're going to impact all of these different areas. So to come to the context and the meat of what Brikesh asked, at the ICC, we were looking for avenues for intervention on air pollution. We were keen to streamline action. And we realized that there was a very limited, as I mentioned, comprehensive level of information across the air quality ecosystem in India. So we didn't have, for instance, a really clear sense of what kind of air quality solutions are being implemented in India, which sectors required key interventions and therefore funding, what were the different current modes of engagement, where were people already intervening, which actors needed the most support, etc. So to gather information on all of these things, we conducted an ecosystem-wide assessment. So we did a landscaping study. We wanted the assessment to include a whole mapping of different stakeholders across the air quality ecosystem, and well as documentation. So we wanted to understand what were the gaps and the opportunities in the air quality space across India. What was everyone doing? Where were their current efforts, and where did efforts need to sort of come in? And this is where we supported Sensing Local in undertaking this really extensive exercise. So they gathered, I think, over 350 stakeholders and spoke to them, really sourced a huge amount of information. They spoke to over 70 networks across the air quality space in India. And then the IndiaCleanAirConnect platform was born from this very in-depth landscaping study. And the idea, again, was to map and assess the landscape of India's air quality ecosystem or space. So this exercise was executed by Sensing Local. They engaged with a very diverse spectrum of organizations looking to combat air pollution, and they shared a common goal. But I think all of these different organizations and actors, they were not connected to each other. They were looking for a way to connect, to collaborate, to synergize, or sort of make sure their Hi guys, can you hear me? Yes, yes. You were Sorry. frozen for a few seconds. Go ahead, Shloka. I apologize. I've just got a slightly weak internet. But I was just saying that, and I'm almost at the end of this, but I did want to say that, the whole point of the landscaping was to understand where these diverse efforts existed, and then how do we connect the actors across the ecosystem? Because as I said, they're all working in silos, but they can really benefit from each other's work. Means where they can really be additional to what they're doing. They can connect, they can collaborate, they can synergize their efforts so that they can do more effective action on air pollution. Quickly, but basically, I just wanted to say that over the course of the exercise, we realized that there was 3 things that the ecosystem required. One was increased collaboration amongst actors, which I think is self-evident from what I've said. The second was alignment around those larger systemic goals. And the third was that they really wanted to share information. They wanted a larger coalition around knowledge sharing. And that was really the effort that we sort of hope to accomplish through building the Clean Air India Connect platform. I'll pause here. I know I've gone on for a while, but happy to sort of take some of this up later as well. No, thanks a lot, Shloka. And actually, you've ended up covering the second question also that I had in mind. So it's okay that you spoke for a while. I was going to ask you about how the India Clean Air Connect can add value to the air quality ecosystem, and you've I think covered it really well. So moving on, actually, I know a lot of people in the audience may be waiting for that. I'm going to come to Ankita now, so that we can do a bit of a deep dive and demonstrate how the platform works. But before you do that, Ankita, if you can just let us know before presenting that how you think journalists in particular, there are a lot of journalists from like different states on the call,
how do you think journalists in particular can benefit from the IndiaCleanAirConnect portal? And if you can demonstrate that maybe through some example. Over to you, Ankita. Yeah, thank you so much, Brikesh, and also thank you so much, Shloka, to bringing us to the point that why this dashboard has been developed. Namaste, मेरा नाम अंकिता ज्योति हुआ. मैं सीनियर प्रोग्राम मैनेजर एयर क्वालिटी नेटवर्क असर में कार्यरत हूँ. और अगला कुछ मिनट मैं आपका लूंगी जिसमें मैं ICAC डैशबोर्ड के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं और क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ से ले सकते हैं, एंड यू कैन यूज उसका इस्तेमाल करके ये जो पूरा एयर पोल्यूशन का डिबेट और डिस्कशन है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं. उस पर मैं बातचीत रखूंगी. मुझे 2 मिनट का थोड़ा समय दें. मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी ताकि मैं साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट करके अपनी बात भी रख पाऊँ. क्या ये इज इट विजिबल? Yes, Ankita, go ahead. ओके, मैंने ऑलरेडी डैशबोर्ड यहाँ पे अपने गूगल अपने सर्वर पे ऑलरेडी खोल के रखा है. सो व्हेनेवर आप इंडिया क्लीन एयर कनेक्ट डैशबोर्ड indiacleanairconnect.org अपने एड्रेस वर्ड पे डाल के जस्ट यू प्ले एंटर, हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे. टू स्टार्ट विद सबसे पहले हमारा होम सेक्शन आता है. इस होम सेक्शन में आपको डैशबोर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसका एक स्पॉटलाइट, यू विल गेट द स्पॉटलाइट हियर. और साथ ही साथ डैशबोर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या विजन रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पे एक ब्रीफ आपको होम सेक्शन में आएगा. एंड आई वोंट टेक मच ऑन दिस सेक्शन. नेक्स्ट आई विल गो इनटू अबाउट सेक्शन, जिसमें जो बेसिकली जो पूरा आइडिया था हाउ एंड वाई ऑफ दिस डैशबोर्ड वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें श्लोका ने ऑलरेडी बात रखी और मेरे जो को स्पीकर हैं अंकित जैन, आई नो ही विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट. तो इस सेक्शन में भी मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगी, बट दिस इज अबाउट द रिपोर्ट जो एक बेस था इंडिया क्लीन एयर कनेक्ट डैशबोर्ड का, और साथ ही साथ क्या इसमें और चीजें हैं वो चीजें यहाँ पे अबाउट सेक्शन में आप मिलेंगी. मैं डायरेक्टली इकोसिस्टम प्लस सेक्शन में जाऊंगी और द फर्स्ट थिंग, आप वहां पे अपने माउस को अगर इकोसिस्टम प्लस इस सेक्शन में करेंगे तो पहला आपको दिखेगा डेटाबेस ऑफ फैक्टर्स एंड द सेकंड इज द सिटी एक्शन हब. मैं सीधे डेटाबेस ऑफ फैक्टर में जा रही हूँ और थोड़ा ये समय लग रहा है खुलने में, तब तक मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगी. और श्लोका ने भी ऑलरेडी इस पे बात की है, ब्रिकेश ने भी इस पे बातचीत की है. जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की बात करते हैं, तो ये एक टर्म तो बहुत सिंपल है, बट इस एयर पोल्यूशन के लिए बहुत सारे सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं. चाहे वो इंडस्ट्री से निकलता हुआ धुआं हो, या गाड़ियों से निकलना हुआ धुआं हो, या किसी एक घर के कोने में लकड़ी या कोयले पे बनता हुआ खाना, उससे भी धुआं जो आ रहा है वो भी हमारे पूरे वायु प्रदूषण को कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो ये एक एयर पोल्यूशन खुद में एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत है और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग एक्सपर्टीज हैं. और वहां पे फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि इन सबको एक साथ आने की जरूरत है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रीज एज एन सेक्टर उस पर काम कर रही है उसके प्रदूषण को कम करने के लिए और सोल्यूशन लेवल पे काम कर रही है, इनफैक्ट पब्लिक अवेयरनेस के लेवल पे भी काम कर रहे हैं और उनका फोकस इंडस्ट्री है, बट साथ ही उस इंडस्ट्री के अराउंड बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो लकड़ी और कोयले पे खाना बना रही हैं और हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन भी उस एरिया उस लोकेलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो उन CSO को समझने के लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होगा वैसी ऑर्गेनाइजेशन से जो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक एयर पोल्यूशन पे काम कर रहे हो, इंडोर एयर पोल्यूशन पे काम कर रहे हो. तो वो एक गैप रह जाता है हमेशा एक्सपर्टीज जो अलग अलग सेक्टर में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कोलैबोरेशन का. तो ये जो हमारा एयर क्वालिटी डेटाबेस है, इस सेक्शन के थ्रू, हमारे डैशबोर्ड के इस सेक्शन के थ्रू हम इसी गैप को एड्रेस करने की हमने कोशिश की है. और साथ ही साथ और साथ ही साथ जो एक और एक्सपीरियंस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी, और शायद यहाँ पर मेरे बहुत सारे मीडिया फ्रेंड्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस होगा और वो टोटली रिलेट करेंगे. मैं पिछले 10 सालों से वायु प्रदूषण के इशू पे काम कर रही हूँ और जो मेरा मेजर एरिया था जहाँ पे मैं काम कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश है. और जब ठंड का समय आता है, खास तौर पे जब ठंड का समय आता है, तो मीडिया में हम लोग वायु प्रदूषण को लेके ज्यादा बातचीत करते हैं और उस समय बहुत बार मेरे पास कॉल आते थे मेरे मीडिया फ्रेंड्स के कि हम
इस पर्टिकुलर पीस एयर पोल्यूशन के सेक्टर पे इस एक रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम किस एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, किनकी कोट ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी एक गैप के तौर पे हमने देखी, और ये जो एयर क्वालिटी डेटाबेस है उसी गैप को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है अपने डैशबोर्ड के थ्रू। अगर आप इस डेटाबेस इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो अभी टोटल 363 एयर क्वालिटी एक्टर्स आपको हमारे इस डैशबोर्ड में मिलेंगे, जिनका जो इंडिया में नहीं ग्लोबली भी जो भी एक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो वायु प्रदूषण के अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं, उनका डेटाबेस है। यहाँ पे फिल्टर के थ्रू आप लोकेशन और ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र यहाँ पे करूँ तो महाराष्ट्र में जितनी संस्थाएं हैं जो वायु प्रदूषण पे काम कर रही हैं, अलग अलग सेक्टर में काम कर रही हैं, उनका डिटेल डेटाबेस मुझे यहाँ मिलेगा। अगर हमें कोई रिसर्चर भी है, अगर उन्हें ये एक्सेस करना है वो एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक डिटेल प्रोफाइल का भी ऑप्शन है, जिसमें फिलहाल अभी 90 ऑलमोस्ट 92 एयर क्वालिटी एक्टर्स हैं हमारे पास, जिनका डिटेल प्रोफाइल में। अंकिता एक मिनट, ये कुछ तो एक डूडल या स्क्रिबल हो रहा है। आई थिंक कोई फीचर ऑन हो गया होगा। कैन यू रीलोड द साइट? आपको एक ब्लू कलर का स्क्रिबल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? मुझे तो नहीं दिख रहा, बट आई जस्ट रीलोड इट। हाँ, ओके, आई कांट सी एनीथिंग। हाउ इज दिस हैपनिंग? Yes, it is visible. Yeah. So I'll stop sharing and then I'll reshare maybe then. हाँ ठीक है, डू दैट। Is it better? Yeah, that scribble is not there anymore. I think कोई फीचर, कोई या बटन एक्टिवेट हो गया होगा डूडल वाला। Okay. तो मैंने डेटाबेस था, मैं डिटेल प्रोफाइल में थी। तो अगर ये 363 जो डेटाबेस है एक्टर्स का, जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग इशू के एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से लगभग 80-90 ऐसे एक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी डिटेल प्रोफाइल अभी के लिए हमने एग्जिस्टिंग हमारे डैशबोर्ड पे है। ये थोड़ा 1-2 सेकेंड लगेगा इसको ओपन होने में। तो वो जो भी प्रोफाइल्स यहाँ पर हैं डिटेल प्रोफाइल्स में, वहाँ पे आप उनका ईमेल आईडी, बहुत जगह आपको फोन नंबर, और साथ ही साथ उनका जो कोर थीम है उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। यू कैन इजिली एक्सेस दैट। फॉर एग्जाम्पल ये जो 83 एयर क्वालिटी एक्टर्स है जिनके डिटेल प्रोफाइल हैं, तो आप देख सकते हैं एंटी पोल्यूशन ड्राइव फाउंडेशन मैंगलोर कर्नाटका की ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और वो कैसे एंगेज करते हैं उसका भी एक ब्रीफ है यहाँ पे। सो ये पूरा इकोसिस्टम का जो मैपिंग है, हमने पूरे भारत और कुछ ग्लोबली भी जो एक्टर्स हैं इनको यहाँ पे डैशबोर्ड में हमने लाने की कोशिश की है। नाउ आई विल मूव टू द इवेंट सेक्शन। जस्ट अ सेकेंड। इस सेक्शन में, इवेंट सेक्शन में, जितने भी वेबिनार, कॉन्फ्रेंसेस या कोई वर्कशॉप हो रहा है एयर पोल्यूशन या उसके इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के अराउंड, वो सारे हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, और अभी हमने शुरुआत की है और आने वाले समय में हम इंश्योर करेंगे कि बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स हो रहे हैं या कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं और किसी रीजन से अगर कोई अटेंड नहीं कर पाए, बट देयर इज अ इम्पोर्टेंट डिस्कशन दैट इज हैपनिंग देयर, तो उनका रिकॉर्डिंग भी हम एक्सेस करके यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी। ये एक वेबिनार है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ये वेबिनार हुआ था, और अगर मैं इसके व्यू मोर सेक्शन में जाऊं, यहाँ से आप इसका रिकॉर्डिंग सेशन जो है ये अवेलेबल है यहाँ पे, और आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इस वेबिनार में क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए थे, शायद कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होंगे, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इवेंट सेक्शन में हमने शुरुआत की है रिकॉर्डिंग सेशन डालने के लिए, और आने वाले समय में हम इसको और रोबस्ट और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स के रिकॉर्डिंग्स हम यहाँ अपलोड कर पाए। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो जॉब्स, जिसमें अगर एयर पोल्यूशन या उससे इंटरडिसिप्लिन, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, उसमें अगर कोई वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, फुल टाइम है, कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी है, वो सारे अपॉर्चुनिटीज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस डैशबोर्ड में एक जगह लाकर ला पाए। और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हम सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि जॉब्स के तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वी नो बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बट अगर कोई एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे एयर पोल्यूशन इसी इशू में अपना कुछ कैरियर में देख रही हूँ, और मुझे वैसे सारी इंफॉर्मेशन, वैसे सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी चाहिए एक जगह एयर पोल्यूशन के अराउंड, देन आई थिंक हमारा इंडिया क्लीन एयर कनेक्ट अभी टू स्टार्ट विथ हम इसको और रोबस्ट करेंगे, बट ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है जो सेक्टर स्पेसिफिक अपना कुछ कैरियर ग्रोथ देख रहे हैं।
तो ये जॉब सेक्शन है जहाँ पे आपको ओपन पोजीशंस ऐसे मिलेंगे, व्यू मोर करके यू विल गेट द डिटेल्स, और वो लिंक भी होगा जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आर्काइव पोजीशंस भी जॉब में आपको मिलेंगे, जो पुराने भी पोजीशंस हैं वो भी सारे यहाँ पे लिस्ट आउट हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था रिसर्चर के एंगल से कि अगर कोई रिसर्चर है और उन्हें जानना है कि पूरे साल भर में वायु प्रदूषण के मुद्दे में कितनी जॉब ओपनिंग्स आई है, तो वो भी मतलब ICAC डैशबोर्ड का अलग इस्तेमाल हो सकता है और हम कर सकते हैं। सॉरी, वो पीछे टेलीफोन रिंग का आवाज आ रही है, तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। नाउ आई विल मूव टू द रिसोर्स सेक्शन। इस सेक्शन ये हमारे डैशबोर्ड का सबसे रिसोर्स इंटेंसिव सेक्शन है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर मैं रिसोर्स प्लस में करूं तो यहाँ पे आपको 6 नए जो सब सेक्शंस है, 6 सब सेक्शंस हैं, जिसमें एक एक करके मैं आपको सब में ले जाऊंगी। सबसे पहले आई स्टार्ट विथ रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट ये टोटल अभी हमारे 115 रिपोर्ट्स हैं डैशबोर्ड में। ये सारे डैशबोर्ड में वो रिपोर्ट्स हैं जो नेशनली पब्लिश हो, चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो, किसी CSO का हो, या कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट हो। ये सारे रिपोर्ट्स हम कोशिश कर रहे हैं कि एयर पोल्यूशन के अराउंड जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसकी एक रिपोजिटरी जैसा हम यहाँ पे बना पाए, कि आने वाले समय में अगर किसी भी सेक्टर में हमें कोई रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें रिव्यू वर्क में करना है, तो दे कैन इजीली फाइंड द रिपोर्ट्स है और उसका वो इस्तेमाल कर सके। फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाऊंगी। आप अगर रिसोर्स प्लस में जाके यहाँ से भी इंफॉर्मेशन पोर्टल्स में आ सकते हैं, और या फिर लेफ्ट साइड में आपको ये एक और दिख रहा है, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी अपने नेक्स्ट सब सेक्शन में जा सकते हैं। नाउ आई विल मूव टू इंफॉर्मेशन पोर्टल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर हमने कोशिश की है और कि हम अपने डैशबोर्ड में डाल पाए। इसमें आप जितने भी इंफॉर्मेशन पोर्टल्स हैं, चाहे वो पब्लिक गवर्नमेंट ओन हो या प्राइवेट ओन हो, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये एक्सेस करके और वहां से डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल पे ये सारे अभी तकरीबन 31 पोर्टल्स, इंफॉर्मेशन पोर्टल्स हमारे डैशबोर्ड पे हैं, और मैं किसी एक का एग्जांपल देकर अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर है। आप रीड मोड करेंगे, सबसे पहले अगर आपको जानना है कि ये पोर्टल है क्या, तो यहाँ पे एक ब्रीफिंग आपको मिलेगा, और आप व्यू पोर्टल करेंगे तो वो आपको नए साइट पे ले जाएगा, जहां से आप उस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर है, ये गूगल के द्वारा शुरू किया हुआ पोर्टल है, जहां पर वो स्ट्रीट वाइज एयर क्वालिटी लेवल को मैप कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन पोर्टल्स डैशबोर्ड में अवेलेबल है, जो आपके इंफॉर्मेशन और डेटा गैदरिंग के लिए बहुत यूजफुल होगा। नेक्स्ट मैं जाऊंगी सिटी एक्शन प्लान्स के लिए। और वो जब तक वो खुल रहा है पेज, में थोड़ा यहाँ पे भी एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगी, सिटी एक्शन प्लान क्या है और हमने यहाँ पर इसे क्यों डाला। तो जब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसके बारे में ब्रिकेश भी बात कर रहे थे, श्लोका ने भी बात रखी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जब साल 2019 में आया, तो कहीं ना कहीं हमने इसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि पहली बार शायद भारत में कोई पैन इंडिया प्रोग्राम बना, जिसमें लगभग अभी फिलहाल 131 शहर हैं, वहां पे इस प्लान के अंतर्गत एक टारगेट स्पेसिफाई किया गया, और साथ ही साथ इस प्लान में एक सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान की बात भी कही गई, जिसमें उस शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए अलग अलग मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, उसका एक प्रारूप तैयार करना था। और इन सब के साथ जो एक और इम्पोर्टेंट फीचर इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में है, वो ये कि इस प्रोग्राम ने पब्लिक अवेयरनेस को, एयर पोल्यूशन के अराउंड पब्लिक अवेयरनेस को, सिटीजन एंगेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। और जब आप सिटी एक्शन प्लान्स भी देखें, तो उसमें जो अलग अलग मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है, किसी भी शहर का अगर आप देख लें, तो उस शहर के प्रदूषण को कम करने के लिए जो अलग अलग मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं, उनके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट सिविक पब्लिक अवेयरनेस और एंगेजमेंट को दिया गया है। तो एक अच्छी बात है कि हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत हम पब्लिक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो पहला सवाल है मेरा, या फिर हमने जो एक नीड सोची कि हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं, अगर उस प्लान का एक्सेस ही आम जनता तक नहीं है, या जर्नलिस्ट के पास नहीं है, मीडिया के पास नहीं है, क्योंकि मीडिया एक ब्रिज की तरह काम करती है पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच, तो हम इस प्लान को कैसे, इस प्लान का जो कंपोनेंट है पब्लिक अवेयरनेस, उसको कैसे इंश्योर कर पाएंगे। तो हमने इस गैप को एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश की कि भारत के जो अभी 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं, उन सारे सिटीज के सिटी एक्शन प्लान को हम यहाँ अपलोड कर पाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिस्ट।
मैं अगर कोई भी लिस्ट खोलूं, अगर अलबर खोलूं या अमरावती खोलूं ये कैप में, तो ये मुझे एक न्यू पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, जो अमरावती सिटी का जो सिटी एक्शन प्लान है, वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और ये एक्सेस हर कोई कर सकता है, चाहे वो आम नागरिक हो जो जानना चाहे कि मेरे शहर का अमरावती के प्रदूषण के लिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या डोमेस्टिक हाउस होल्ड कुकिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसको वहां पर उस मेरे प्लान में उसको रजिस्टर्ड किया गया है कि नहीं, एक्नॉलेज किया गया है कि नहीं, या बाकी चीजों के लिए भी हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो क्लीन एयर एक्शन प्लान के बाद एक लेवल आगे बढ़ के जो सरकार ने MOEFCC की तरफ से और CPCB की तरफ से जो कहा गया था कि अब इन शहरों का एक माइक्रो एक्शन प्लान भी बनाया जाए क्लीन एयर एक्शन प्लान के अंतर्गत, जिसमें और माइक्रो डिटेलिंग हो कि हर एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज का क्या माइक्रो लेवल प्लान है, क्या फंड्स अवेलेबल हैं और कैसे इसको कर रहे हैं। तो वो सारे माइक्रो एक्शन प्लान भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे 131 शहरों का माइक्रो एक्शन प्लान अपने डैशबोर्ड में अपलोड कर सकें। फिलहाल अभी आपको 46 सिटीज के माइक्रो एक्शन प्लान यहाँ मिलेंगे। और जो मतलब मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी वो बात कि लास्ट हमने जो देखा था कि प्राणा पोर्टल जो सरकार के द्वारा जारी किया एक पोर्टल है, जिसका भी पूरा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को माइक्रो एक्शन प्लान, क्लीन एयर एक्शन प्लान और एनकैप के बारे में अवगत कराएं, क्या प्रोग्रेस हो रहा है वो देख पाए। उसमें भी अभी 44 शायद माइक्रो एक्शन प्लान अपलोड किए गए हैं। तो हमने अभी 46 है हमारे डैशबोर्ड पे, और आने वाले समय में हम लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्लान यहाँ पे अपलोड कर पाए। तो ये हमारा पूरा सिटी एक्शन प्लान में इस सेक्शन में आप एक्शन प्लान और माइक्रो एक्शन प्लान का पूरा डिटेल एक्सेस कर सकते हैं। इफ आई मूव फर्दर, तो ये मॉनिटरिंग डेटा है, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है अगेन क्लीन एयर एक्शन प्लान का जो एक सेक्शन है वो मीडिया से लेकर आम जनता से लेकर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्पफुल है। ये एक ही मॉनिटरिंग डेटा सबसेट जो सेक्शन है ये भी हमारे लिए उतना ही यूजफुल होगा इन सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। अभी शुरुआत में भी फिर मैं बोलूंगी, श्लोका ब्रिकेश ने 2014 की बात की जब WHO की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में आई भारत के बहुत सारे शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में थे, और वहां से कहीं ना कहीं आई थिंक वो स्टार्ट है हमारा डिबेट डिस्कशन का एयर पोल्यूशन का। और वहां पे बहुत सिटी लेवल पे, रीजनल लेवल पे लोगों ने सवाल पूछे, डेटा कहाँ है, हम बोल रहे हैं प्रदूषण है लेकिन आंकड़े कहाँ हैं। और वो आंकड़े हमेशा बात होती थी दिल्ली शहर की या ऐसे मेट्रो सिटीज के आंकड़े मिलते थे, बट सिटीज की या बहुत रीजन में जाके हम वो आंकड़े नहीं ले पाते थे। और जब तक आंकड़े नहीं है तो मतलब हमारे पास नंबर नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते कि कितनी बुरी है, कितनी अच्छी हवा है हमारी। और फिलहाल पिछले कुछ सालों में खैर इसमें सुधार हुआ है, जो हाइब्रिड टेक्निक है, लो कॉस्ट सेंसर्स आ गए, आजकल सैटेलाइट मॉनिटर, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग से भी डेटा इजिली एक्सेस है, पब्लिकली अवेलेबल है। बट जो उसमें एक कंसर्न हो जाता है कि जो हाई ग्रेड मॉनिटर्स होते हैं, जो CAQMS होते हैं, कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, उसके डेटा में कम बायसनेस होती है, इन डेटाज में ज्यादा बायसनेस होती है। और इनफैक्ट ये जो लो कॉस्ट सेंटर और सैटेलाइट डेटा है उनको भी हमें ये रेफरेंस ग्रेड मॉनिटर से एक कैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इस पूरे इशू को हमने रजिस्टर करने के लिए हमने एक्नॉलेज किया, और हमने अपने इस सेक्शन में कोशिश की है कि हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी जो डेटा है उसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिकली अवेलेबल और एक्सेस करा पाए। इस पूरे सेक्शन में जो हमने डेटा सोर्स किया है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से है। यहाँ पे आप PM10 और PM2.5 जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है हमारे भारतवर्ष के लिए, उसके डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये डेटा आप साल 2018 से साल 2022 तक एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल इस जो डेटा सेट है हमारे पास, उसमें लगभग भारत के 20 राज्य और लगभग 105 शहरों का एयर क्वालिटी डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। और मैं अब थोड़ा इसमें कैसे कर सकते हैं और क्या, ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेक्शन है, और वो इतना इंफॉर्मेटिव है कि मुझे लगता है जो रिसर्चर नहीं भी हैं वो भी इससे एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग निकाल कर और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, जस्ट टू टॉक अबाउट द इशू और ऑल्सो टू ब्रिंग द स्पॉटलाइट इन देयर सिटीज इटसेल्फ। मैं अगर सबसे, इसमें 3 सब सेक्शन है, कंपेयर डेटा अक्रॉस लोकेशंस, एक है एनालाइज PM2.5 एंड PM10 एंड डेटा अवेलेबिलिटी। First I'll go analyze PM2.5 and PM10. मैं इस सेक्शन में जाती हूँ और मैं स्टेट में जाती हूँ, और मैंने बिहार चूज किया, रैंडम मैं बिहार चूज कर रही हूँ। फिर फॉर एग्जांपल मैं पटना चूज करती हूँ,
ये मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। हर शहरों में अलग अलग नंबर हैं मॉनिटरिंग स्टेशन के, जैसे पटना में अभी 6 मॉनिटर्स हैं, गया या मुजफ्फरपुर में 2 हैं, तो नंबर वेरी करता है। तो यहाँ पे जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उस शहर के, उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी एक का देखना चाहते हैं तो अनसेलेक्ट करके आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर सबका आप देखना चाहें तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल सबका करके कुछ दिखाना चाहूंगी, जैसे मैं सेलेक्ट ऑल कर रही हूँ। और ईयर में आप 18 से 23 तक का, 22 तक का डेटा है। मैं मान लीजिए मैं 2021 का यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर रही हूँ। अब अगर आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं तो ये जो बबल है, ये छोटा सा राउंड जो आपको एनुअल एवरेज है, जो एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन है PM10 और PM2.5 का, जो सालाना औसत है। आप अगर इस बबल पे अपना माउस ले जाएंगे तो आप देखेंगे आपको नंबर्स मिल रहे हैं। मतलब अगर पटना से कोई है हमारे साथी, वो जानना चाहे कि साल 2021 को मेरे शहर का वायु प्रदूषण कैसा था, और जो नॉर्मली हम PM2.5 या PM10 से नाप रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि साल 2021 में सालाना औसत PM2.5 का 73.86 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, विच इज ऑलमोस्ट 40। अगर हमारा PM2.5 का एनुअल मील है जो यहाँ पे डाला हुआ है, तो लगभग 1.2 और 3 टाइम्स है हमारे सेफ स्टैंडर्ड से CPCV का। और ऐसे ही PM10 का जो 154 है, तो ऑलमोस्ट वो 2.34 टाइम्स होगा। तो ये फाइंडिंग्स और ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप इस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डेटा सेक्शन से गैदर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ये जानना है कि साल 2021 में उस शहर का सबसे प्रदूषित महीना कौन सा रहा, तो आप सिंपल इस ग्राफ में ऐसे होवर करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस ग्राफ से, मंथली एवरेज वाले ग्राफ से सिंपली दिख रहा है कि PM10 का जो हाईएस्ट वीक है यहाँ पे है, और वहां पे मैं अपना माउस ले जाती हूँ तो मुझे दिख रहा है कि एवरेज PM10 का उस टाइम 222.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, which is a very high value. But this set of information is really crucial, और हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पे ला पाए। इसको लेकर टाइम चेक, आई थिंक इन 3-4 मिनट्स इफ यू कैन वाइंड अप, क्योंकि फिर हमें अंकित के पास भी आना है, और कुछ शायद 10 मिनट अगर हम लोग दे सके सवाल जवाब के लिए, तो 5 more minutes। या ठीक है, I'll do this। तो ये मंथली एवरेज में ये डेटा एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक छोटी सी एनालिसिस की है, वो भी मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगी। बट अगर आपको उस सिटी के लोकेशन वाइज डेटा देखना है कि उस जो 6 शहर, मान लीजिए पटना में जो 6 मॉनिटर्स लगाए हैं, उन 6 मॉनिटर्स में सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका कौन है, क्योंकि अब तो हाइपर लोकल वार्ड लेवल पे हॉटस्पॉट की बात हो रही है, तो वो भी इस डैशबोर्ड के थ्रू आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। द थर्ड पॉइंट, जो थर्ड सब सेक्शन हमने इसमें डाला है, वो डेटा अवेलेबिलिटी, जो फिलहाल कुछ दिन से, मतलब पिछले कुछ सालों में तो सुधार हुआ है, लेकिन जब हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो एक कंस्ट्रेंट दिखता है कि पूरे 365 दिन मॉनिटरिंग नहीं होती थी। तो यहाँ पे इस सेक्शन में आके आप वो भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चंडीगढ़ में गई, चंडीगढ़ मैंने सेलेक्ट किया, मैंने सेक्टर 22 में सेलेक्ट करती हूँ 2022 का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रे है, इस दिन मॉनिटरिंग नहीं हुई है, तो लगभग ऐसे इमेज आपको अपने शहरों की भी इस डैशबोर्ड से दिख सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू शो वन मोर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, ब्रिकेश, जो मैंने बनाई है। तो I'll stop sharing this and I'll share something, and this will be the last. ये अगर दिख रहा है आपको, तो मैंने वो जो मंथली एनुअल एवरेज वाला जो मैंने शुरुआत में ग्राफ दिखाया था, मैंने सिंपल माउस ले जाके मैंने PM2.5 और PM10 का 2018 और 2022 का लेवल नोट किया अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में। मैंने सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कि क्या परसेंटेज चेंज हुआ है, ये डेटा, ये ग्राफ आपके सामने है, जो कह रहा है कि साल 2018 से 22 के बीच में कोलकाता में प्रदूषण में कमी आई है, जो PM2.5 49% कम हुआ है, PM10 35 हुआ है। फिर खन्ना में, पंजाब में जो खन्ना है, उसमें मैंने रजिस्टर किया, PM जो हमारे डाटा थे उसने बताया कि PM2.5 में 19% इजाफा हुआ है, वहीं PM10 5%। फिर एक हमने चंद्रपुर महाराष्ट्र से एक शहर लेकर उसको भी बनाने की कोशिश की, जिसमें PM2.5 का 11% इंक्रीज दिख रहा है और PM10 4% डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक छोटी सी फाइंडिंग, और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम अपने डैशबोर्ड में जो EQ सेक्शन है उसके साथ कर सकते हैं। तो ये हमारा रिसोर्स सेक्शन में इतना था, और सॉरी, हमारे रिसोर्स सेक्शन में गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस हैं।
जिसमें जितने भी सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अभी 19 नोटिफिकेशंस हैं। साथ ही साथ जो एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर है हमारा, वो मल्टीमीडिया गैलरी है। इस गैलरी में हम जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस एयर पोल्यूशन के अराउंड हम इसको डालें, और साथ ही साथ वेबिनार्स के रिकॉर्डिंग्स है वो सब आप इस सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा रिसोर्स है। नेक्स्ट इज द अपॉर्चुनिटीज विच इज द लास्ट सेक्शन। तो यहाँ पे जो भी कोलैबोरेशन और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है आप इस सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड विच इज रियली इंपॉर्टेंट, जब हम एयर पोल्यूशन में कोलैबोरेशन की बात करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग की बात करें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी है। अभी फिलहाल 2 अपॉर्चुनिटीज हैं और हम कोशिश करते हैं जैसी अपॉर्चुनिटीज आए हम इसको यहाँ पे अपलोड करें। So with that I'll stop here and thank you। इतना मैंने समय भी ले लिया उसके लिए माफी, और इतने धैर्यपूर्वक आपने मेरी बात सुनी। Over to you, Brikesh। Thank you so much, Ankita. I know it is not an easy job to take people through a portal which is so rich and filled with so much information, but I know हमारे पत्रकार भाई और बहन काफी है जिन्हें इस टाइप के जो डैशबोर्ड है, I mean you can, after the webinar ends, you can go back and spend as much time as you want and playing around with the data. Now, without wasting much time, I want to straight away come to Ankit. Ankit from Sensing Local, who got involved with this project, I think 4 years ago. जब जो report ecosystem mapping की जो report है, that was commissioned. So Ankit, when you started making the report, which is, so what were the key gaps that you first, like, you identified in the ecosystem, and then how did you try to address those gaps through the IndiaCleanAirConnect portal, which followed after the report? Ankit. Yeah. Hi, Brikesh. Thank you for the question. And I just want to also thank Shloka for introducing the report and introducing the project. I think उन्होंने ज़्यादातर points cover कर दिए हैं. But so Brikesh, to the point of what were the gaps that we found, right, through the process. So actually, what we were doing when we were doing the ecosystem mapping, the landscape mapping, we had interviewed 87 different air quality actors across India, from academic sort of organizations to civil society organizations to NGOs to private actors. जितना diverse sort of diversity जितना ले सकते हैं उतना हमने किया था. We also interviewed people across different sectors. So people working in waste, people working in doing modeling on air quality, working on sustained mobility. So हमारा एक उस समय एक hypothesis था that when we try to understand the air quality ecosystem, we often are not including most of the people who are working in different sectors. They contribute to us improving air quality, but don't see themselves as air quality actors. So this was actually one of the major gaps that we had noticed very upfront. So even when we were doing interviews, there's almost 110 hours of interviews that have gone into drawing insights and then creating this report. And the report is actually on the about section of this dashboard. And the dashboard itself came about because of the report, because people kept saying repeatedly that, look, there is no central place. And I think Shloka mentioned this earlier, that there is no place where people are finding all the information together. So just coming back to the gaps, as I said, one is that the people actually in 2020, when we started this, the big question was, we don't even know what the air quality ecosystem is. We don't know who's working in the air quality system. Second, these, as I mentioned, all the multi-sectoral actors don't see themselves as air quality actors. So here, when we are trying to say that, look, air quality is a national crisis, we have to work together. So collaboration has to be the way to go, and we have to align efforts. How will I align efforts or cause collaboration if I don't even know what people are doing? So the platform, the database on the platform that you see of the ecosystem that is there, it was a direct resultant of that. That shows you that there are 350 actors. Now, if you want to see who's working on what, you can actually go start exploring from there. There is also the city action hubs that Asar is leading, that you can see in 12 cities. There are city action hubs working on air quality. You can go see if there's a city action hub in your city. And lastly, through the opportunities and jobs, you can also find like-minded people. The second gap that I also want to articulate is that people often commented on the idea that the knowledge, data, and funding is highly fragmented and asymmetric. तो asymmetric का ये मतलब है कि largely लोगों को लगता था कि दिल्ली में ही सारा पैसा जाता है, दिल्ली से ही सारा knowledge आता है.
and then rest of the India का क्या होगा? And so this ये repeatedly हमें सुनाई दे रहा था कि there's an asymmetry with which how these efforts are being governed, and so there is a need to converge efforts कि लोग कहाँ काम नहीं कर रहे हैं वो भी जानना जरूरी है. ये तो ठीक है कि कहाँ से काम हो रहा है. तो I think in many ways there was a need to strengthen the accessibility and availability of knowledge, data, and funding, which is why also what you see on the dashboard is that there's a very heavy resources platform now, page that is there, which gives you information about the portals, notices, webinars, events, etc., etc. And I think Ankita pointed this out, that this dashboard is not just about seeing what is happening right now, but the histories aspect, the archive, whether it's archive in jobs or it's archive in events. It's really about making sure that we don't duplicate efforts. Duplication of efforts was the third gap that I want to add here. कि बहुत सारे लोगों को, a lot of people felt that people were just repeating the same thing. And this is a way in which we can actually stop that, because we can then see all the people who are doing the webinars around these things, we can see the people who are producing reports, and then really be able to track what is happening. So yeah, these three main problems is what I would like to. Thanks, Ankit. Just one more follow-up question, and then maybe we can take some questions because we've got 10 minutes left. So if you can actually give a use case scenario of the India Clean Air Connect portal for our participants, that would be great. Yeah. So there are three quick points that I would just like to add here. One is, हम सबको पता है कि बहुत सारे WhatsApp groups हैं, 1000 WhatsApp groups. Now, WhatsApp groups are largely ephemeral. वो अभी आपको instant news मिलती है, but beyond that, the information kind of disappears because there are 1000 messages every day. So you should see this platform as an aggregative platform. ये platform है जो थोड़ा slow platform है. उसमें slowly information gather होगी, but when you look back after a year, you'll be able to find mountains of information where you can find patterns within this information. कि कहाँ क्या हो रहा है, and what is, like, how are people evolved, how are efforts evolved. Second point is, many times when information is created by the government or it's created by the scientific community, जो formats होते हैं वो काफी consumable नहीं होते. तो आपने देखा होगा जो dashboard जैसा बनाया जा रहा है, one of the ideas is to improve the interface and format within which we disseminate knowledge or information on anything or data. And so you'll see that we are trying to humanize it, we're trying to make it more accessible. And the third is this idea that we are trying to envision this platform as a mirror to the ecosystem. जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आपको दिखाई देगा कि कहाँ लोग काम कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं. This is exactly what we are supposed to be doing. We are supposed to keep track of how are the national efforts going. So ये platform अगर हम सब लोग use करेंगे, and this is a members platform in the sense कि आप log in करके सारे institutions कोई भी member बन सकता है, whether you're academic or civil society, and you can upload your reports, you can upload jobs, you can upload any information that you want. And actually the idea is that if all of us start contributing our efforts to this platform, then it is truly a digital mirror of what is happening in the country, and all of us can work in sync and alignment with each other. So the third thing would be that. I'll stop here. Thanks a lot, Ankit. If people have any questions, because we have 10 more minutes, you can please type your questions in the chat window. In the meantime, I have two questions which are, I think, which would be relevant to the entire participant list, because the list is divided into either citizens of civil society or the rest are journalists. So one question is for citizen engagement, which I'd like, Ankit, if you can field that, is how do you think citizens can use this dashboard effectively if they want to get involved in the issue of addressing their city's air quality? So this is a great question. I think I've heard this question many times, and I would like to say कि आप अगर dashboard में जाएंगे and you see कि मेरे शहर में कौन किस पे काम कर रहा है, you can actually go to the ecosystem dashboard and see कि ये जना इस चीज पे काम कर रहा है. जैसे for example कोई organization indoor air pollution पे काम करे, कोई organization waste पे काम करे. This is one way of understanding कि अच्छा how can I go connect them. Secondly, I would point to the city action hubs that Asar themselves are doing. कि you can actually go and see कि what are the activities going on. So there are these two places which can start becoming the first point at which you find somebody who you think would be your next step. I would put it in that. Thanks, Ankit.
And Ankita, I'd like to come to you with the next question, and this is primarily for journalists. So, see, data is extremely crucial when it comes to air quality. And other than just the monitoring data, there is all sorts of other information as well. And you work in a state, and especially there are hubs like Ranchi, Jamshedpur, and Dhanbad. What do you think? Or how do you think the journalist can best use this dashboard to inform the kind of storytelling and reporting that they are doing? Yeah, thank you. And I think that's really important question, Brikesh. एक तो because the state that you refer to, हम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे तो, या फिर दिल्ली के अलावा मुझे लगता है हम किसी भी राज्य की बात करें तो एक जो इम्पोर्टेंट कंसर्न आता है वो कि इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है. देयर इज अ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग देयर, तो वो भी एक्सेस बहुत कम एक्सेस है. तो ये जो डैशबोर्ड है, आई थिंक ये तीनों कंपोनेंट को, चाहे आप एयर क्वालिटी डेटा की बात करें आप सिंपल फॉर्म में या उसको एनालिसिस करें, तो वो डाउनलोड का फीचर के साथ आप वो कर सकते हैं. साथ ही साथ इकोसिस्टम प्लेयर है इस डैशबोर्ड में, जहाँ पे एटलीस्ट अपने शहर का या अपने स्टेट का अगर कोई जर्नलिस्ट उस शहर के एक्सपर्ट को जानना चाहे और उनसे बात करना चाहे तो वो उनकी डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं. और जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जो क्लीन एयर एक्शन प्लान और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, जिसके अराउंड ही अभी पूरा एयर पोल्यूशन का इश्यू भारत में देखा जा रहा है और वही लेंस के अंतर्गत ही सारी कार्रवाई भी की जा रही है. तो अगर ऐसे में अगर क्लीन एयर एक्शन प्लान और माइक्रो एक्शन प्लान का एक्सेस हो और उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसको अगर रीड आउट करके और वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक को दें, खासतौर पे जर्नलिस्ट जो कर सकते हैं और वो डैशबोर्ड के थ्रू, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं डैशबोर्ड में जो बहुत यूजफुल होंगी खासतौर पे जर्नलिस्ट के लिए. और अपार्ट फ्रॉम दैट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और सीएसओस के लिए तो डेफिनेटली ये यूजफुल है. होप आई हैव आंसर द क्वेश्चन. Thanks, Ankita. There are a couple of more questions. When we talk about monitoring stations in the portal, are we talking about the government monitoring station? I think it's a very important, we should clarify that all the data is legit, government data. Ankita, if you can answer that. जो एक ही मॉनिटरिंग डेटा जिस सेक्शन में जितने भी डेटा हैं, these are all sourced from सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो CAQMS कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस जो अलग अलग शहरों में लगाए हैं, उसकी डेटा एक्सेस हमने CPCB के वेबसाइट से करी है, CPCB के डोमेन से करी, और उसको यहाँ पे हमने एज एन रेपोजिटरी और इंटरनल ग्राफ्स के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट किया. सो इट्स ऑल फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. Thanks. And one last question. I think, I mean, this is not so much about the dashboard, but maybe Ankit or Ankita, anyone can take. The question is about, there is in smaller cities, for example, there's no beat which is being created to cover air pollution or environmental issues as such. I mean, there is often one journalist who is covering multiple beats, and environment or air pollution ends up being one of them. So how can that change? I think if I can just add a thing here, that one of the things we're trying to do here is that the dashboard is the way to learn from each other. And ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर जगह we have 300 cities and 7,000 towns. I mean, हम 130 cities को NCAP के अंदर मानते हैं, but that is the scale of India. And air pollution हर जगह problem. So actually we should look at the dashboard as a learning platform. जरूरी नहीं है कि अब बड़े शहर में भी जरूरी नहीं है कि सारी चीजों पे काम हो रहा है. Actually नहीं हो रहा है. And so we should be looking at this as a collective learning platform. Ki somebody is doing well in waste, okay, we learn from them. Somebody is doing something better in mobility, we bring those efforts. So we can actually look at this as a peer-to-peer learning platform, actually. Thanks, Ankit. Ankita, would you like to add any last closing comments? Uske baad mein maybe I can just give a couple of important announcements and we can close.
want to add, I just want to say कि हमें एयर पोल्यूशन को एक प्राथमिकता बनानी होगी जो हर स्तर पे हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और वो तभी हो सकता है जब हम ज्यादा से ज्यादा एयर क्वालिटी डेटा को पब्लिक एक्सेस ला पाए, सिटीजन को समझा पाए और उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर कर पाए। एंड आई थिंक फॉर दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमारा ICAC डैशबोर्ड बहुत यूजफुल रहेगा, एंड आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज दिस एज मच एज पॉसिबल। Yes, that's it, Brikesh. Thank you. Thank you. Thanks, Ankit. Thanks, Ankita. Thanks, Shloka, if you are still there. So couple of announcement. काफी जो भी हमारे जर्नलिस्ट भाई आज जुड़े हैं, आपके इनबॉक्स में आपको प्रेस रिलीज ऑलरेडी मिल चुकी होगी। अगर आपको प्रेस रिलीज नहीं मिली है तो मैं एक ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ, आप वहां पे मैसेज करके प्रेस रिलीज ले सकते हैं। ये ईमेल आईडी है, इसको आप नोट कर लीजिए अगर आपको प्रेस रिलीज नहीं मिली है तो। दूसरा अनाउंसमेंट कि आप जो क्लीन एयर कनेक्ट डैशबोर्ड है उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं लाइव अपडेट्स के लिए। सो यूट्यूब, ट्विटर, थ्रेड्स और इंस्टाग्राम, ये चारों पे रेगुलर अपडेट्स, जो भी वेबसाइट पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपलोड होती है, हम लोग उसको सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते हैं। तो अगर आप लोग उसे फॉलो कर ले तो आपको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सी नई रिपोर्ट, क्या नया डेटा अपलोड हुआ है, कौन सा नया इवेंट आने वाला है या पिछले इवेंट का वीडियो अपलोड हो चुका है। और आप लोगों से एक आखिरी विनती यही रहेगी कि दिस डैशबोर्ड इज ओनली एज गुड एज यू गाइज मेक इट। तो आप लोग जितना इसको एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे, और अगर कोई फीडबैक हो, please feel free to reach out through any of these social media handles, and that's how we will take your feedback seriously and start adding more and more content, ताकि सिविल सोसाइटी के लिए और जर्नलिस्ट के लिए आगे चल के एक वन स्टॉप शॉप या रिपोजिटरी बने जहां पे सारी relevant information आपको इस डैशबोर्ड पे मिल सके। Again, thank you very much for taking time out on a Wednesday afternoon. And I would like to close the session here. It's right on time. Thanks. Bye-bye. Thank you. Karishma, you can stop the recording now, I think.